So let's start with exercise 8.2, question number 2. Y is equal to C2 plus C1 upon X. This question contained two constants, C1 and C2. So we'll differentiate two times. So we'll find the first derivative, that is dy by dx. C2 constant 0. C1 बाहर आ जाएगा, 1 by x का डेरिवेटिव is minus 1 upon x square. So my first derivative is dy by dx is equal to minus c1 upon x square. Okay, now we'll differentiate second times, but before differentiating थोड़ा मैं इसको और सिंप्लीफाई करो. x square को मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ. x square dy by dx is equal to minus c1. Now we'll differentiate one more time. We'll differentiate one more time. तो यहाँ पे u into v rule अप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि x square into dy by dx will apply u into v rule. That is u derivative of v plus v derivative of u. तो यहाँ पे लिखेंगे u derivative of v plus v derivative of u और minus c1 constant, derivative will be 0. The next step is derivative of derivative, मतलब dy by dx का one more time derivative is called as second derivative, that is d2y by dx square plus dy by dx. X square is 2x equal to 0. I can take common over here. This is my first term, this is my second term. X is common. Plus 2, फिर x को वहां भेज देंगे 0 by x डिवाइड में. So this is x d2 by dx square plus 2 dy by dx. 0 divided by x is 0. This is my differential equation which do not contain any constant term and also containing derivative terms. ठीक है? So in this way you have to find the derivative. Now let's start with third question. सेम वे में सॉल्व करेंगे जैसे हमने सॉल्व किया. y is equal to c1 plus c2x e raised to x. सॉल्व करने के लिए दो मेथड है. आई विल डू द इजीएस्ट वे. ध्यान सुनो. सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ. इट इज c1 e raised to x plus c2 x into e raised to x. सबसे पहले विल चेक कितने कांस्टेंट दिए हैं. इन दिस इक्वेशन वी हैव टू कांस्टेंट c1 एंड c2. दो कांस्टेंट रहेंगे तो विल डिफरेंशिएट टू टाइम्स. डिफरेंशिएट टू टाइम्स, दैट इज dy by dx. इसका और इसका सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे c1 बाहर आएगा, e raised to x का डेरिवेटिव इज e raised to x. यहाँ पे c2 बाहर आएगा, x into e raised to x. So we'll apply u into v rule. What is u into v rule? U derivative of v plus v derivative of u. c1 e raised to x plus c2. Differentiate two times करें तो I'm taking the first derivative. This is my first derivative. ठीक है. Differentiate with respect to x. तो c1 e raised to x plus c2. यहाँ पे x e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x plus e raised to x. x का डेरिवेटिव is 1. So we got the first derivative as dy by dx is equal to c1 e raised to x plus c2. I can take e raised to x common, the bracket में x plus 1. This is my first derivative is done. Now one more time लेंगे again. दूसरी बार इसलिए because we have two constant. Again differentiate with respect to x.
that will be d2y upon dx square. तो अगेन c1 बाहर आएगा e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स प्लस c2 बाहर आएगा, यहाँ पे e रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन है, u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, u इंटू वी रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन, x का वन और वन का जीरो प्लस x प्लस वन, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इज e रेस टू एक्स. So here d2y upon dx square is equal to c1 e raised to x plus c2 e raised to x plus x plus 1 e raised to x. This is c1 e raised to x plus c2 e raised to x common. I'll take e raised to x common. In bracket it is 1 plus x plus 1. Which is c1 e raised to x plus c2 e raised to x in bracket x plus 2. That's my answer. So finally we got the second derivative. But still constant remove नहीं हुआ है और even c1 और c2 दोनों present है. So we'll use, जब भी दोनों constant अगर present है तो we'll use determinant method to evaluate. अब determinant method क्या होता है, तुम्हारे पास जो तुमने तीनों दो डेरिवेटिव निकाले सब साथ में लिखो. तो जो सेकंड डेरिवेटिव मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले c1 e raised to x plus c2 e raised to x x plus 2 which is equal to my second derivative d2y upon dx square. फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, c1 e raised to x plus c2 e raised to x x plus 1. ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव था और मेरा मेन इक्वेशन था c1 e raised to x plus c2 x e raised to x is equal to y. डिटरमिनेंट में सॉल्व करने का मेथड है कि दो ही कांस्टेंट होने चाहिए तो ही डिटरमिनेंट के थ्रू सॉल्व करते, और ये तभी एप्लीकेबल है जब तुम्हारे पास इक्वेशन में कांस्टेंट रिमूव करना डिफिकल्ट रहेगा तब. तो डिटरमिनेंट में यहाँ पे मिल रहा है डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो. डिटरमिनेंट वैल्यू कौन सी आएगी, पहला जो कॉलम रहेगा दैट रिप्रेजेंट c1 की वैल्यूज, मतलब c1 के साथ जो मल्टीपल रहेगा, पहला c1 के साथ क्या है e रेज टू एक्स, दूसरे में c1 के साथ क्या e रेज टू एक्स एंड तीसरे में c1 के साथ क्या e रेज टू एक्स. दूसरा जो रहेगा सेकंड कॉलम दैट रिप्रेजेंट c2 के साथ जो मल्टीपल रहेगा दैट इज x इंटू e रेज टू एक्स x प्लस वन इंटू e रेज टू एक्स एंड x प्लस टू इंटू e रेज टू एक्स. और जो लास्ट रहेगा इक्वल टू के साइड वो y dy by dx and d2y by dx square. Now we'll take common terms. सिंप्लीफाई तो करेंगे लेकिन पहले कॉमन टर्म लेते हैं. पहले कॉलम में e रेज टू एक्स बाहर आएगा, दूसरे कॉलम में भी e रेज टू एक्स कॉमन आ रहा है, तो वी आर लेफ्ट ओनली विद 1 1 1 x x plus 1 x plus 2 y dy by dx and d2y by dx square. बस अब इसे इवेल्युएट करेंगे एंड दैट माय आंसर. e raised to x into e raised to x is e raised to 2x, let it be over here only. डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 1 लिखेंगे तो ये 4 के मल्टीपल, मतलब 1 लिखेंगे तो इट विल बी x plus 1 d2y upon dx square minus x plus 2 dy by dx माइनस x लिखेंगे तो ये 4 एलिमेंट आएंगे, तो 1 d2y by dx square माइनस dy by dx और लास्ट में प्लस y लिखेंगे तो ये फर्स्ट 4 आएंगे नीचे के, तो x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो e रेज टू 2x, अगर ये देखा जाए ब्रैकेट ओपन करो तो x प्लस 1 d2y, अब इसे सिंप्लीफाई करना, जो आंसर है दैट विल बी योर फाइनल आंसर कंटेनिंग डेरिवेटिव के टर्म्स, नो कांस्टेंट.
माइनस एक्स का ओपन करेंगे तो एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ब्रैकेट ओपन करो तो एक्स और एक्स कैंसिल 2 माइनस 1 इज 1 तो वाई ओनली। सिमिलर टर्म कंबाइन करो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कंबाइन होगा that is x plus 1 minus x and d2y by dx square. So I have taken d2y by dx square common तो यहाँ पे x plus 1 बचेगा वहाँ पे minus x। सिमिलरली इसमें भी मैं कॉमन लूंगा dy by dx तो प्लस dy by dx कॉमन यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स माइनस 2 और ये बचेगा प्लस एक्स एंड देन प्लस वाई तो यहाँ पे x और x कैंसिल यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल इट इज e रेज टू x d2y upon dx square minus 2 dy by dx plus y इक्वल टू 0 और लास्ट में e रेज टू 2x को वहां भेज देंगे तो 0 अपॉन समथिंग इज अगेन 0 ओनली तो d2y upon dx square minus 2 dy by dx plus y that's my answer. So this is one way to solve using determinant method. I'm having one more way वो भी मैं solve कर दे रहा हूँ तो for this sums you will have two method ठीक ये थोड़ा बड़ा है लेकिन now the same question number third I will solve with another method देखो वो कैसे करना है question number third again I am solving with different method y is equal to c1 plus x c2 ब्रैकेट में e रेज टू x तो मुझे यहाँ पे एक चीज बताना है सपोज अगर मैं लिखा a इज इक्वल टू b e रेज टू x तो मुझे जो राइट हैंड साइड में e रेज टू x है उसको लेफ्ट में भेजना है तो यहाँ पे इट विल बी b e रेज टू x को यहाँ पे लेके जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा और जो भी चीज अपॉन में अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो उसका साइन चेंज होता है तो इसका मतलब ये कोई भी राइट साइड में अगर e का पॉजिटिव टर्म है उसको लेफ्ट में भेजना है तो e का नेगेटिव पावर हो जाएगा दैट्स इट इतने डिफरेंस है इट विल बी द नेगेटिव पावर ऑफ e पॉजिटिव है लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे वही e रेज टू x सबसे पहले मैं आई वांट टू रिमूव दिस e रेज टू x आई विल ट्रांसफर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो मतलब e रेज टू x जो है मल्टीप्लाई करा वहां पे डिवाइड हो जाएगा दैट इज y डिवाइड बाय e रेज टू x c1 plus x c2 I'll take it up y into e raised to minus x is c1 plus x c2 now differentiate with respect to x यहाँ पे I will apply u into v rule what is u into v rule u derivative of v again derivative of minus x is minus 1 plus v और y का डेरिवेटिव dy by dx यहाँ पे c1 plus x c2 दो कांस्टेंट है जब डेरिवेटिव लूंगा तो c1 चला जाएगा इट इज 0 तो और x का डेरिवेटिव इज 1 टाइम्स ऑफ c2 तो वी गॉट द फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस ऑफ y e रेज टू माइनस x प्लस e रेज टू माइनस x dy by dx again one more time derivative because we have two constant तो यहाँ पे u into v रूल माइनस बाहर लिख के y e रेज टू माइनस x का e रेज टू माइनस x again derivative of minus x is minus 1 plus e रेज टू माइनस x y का डेरिवेटिव dy by dx this is u into v rule u derivative of v plus v derivative of u प्लस यहाँ पे भी u into v करेंगे u और v will apply u into v rule एंड यहाँ पे भी हम लोग u into v rule अप्लाई करेंगे तो e raised to minus x is my u and dy by dx is my v तो u derivative of v plus v derivative of u तो it will be e raised to minus x dy by dx का डेरिवेटिव मतलब एक बार और डी टू वाई प्लस
dy by dx, e raised to minus x का डेरिवेटिव is e raised to minus x, again डेरिवेटिव of minus x is -1 एंड c2 का 0। तो यहाँ पे मैंने 2 बार डेरिवेटिव लिया और मेरा कांस्टेंट रिमूव हो गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस वाई माइनस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स एंड माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, सब में ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन है, इट इज वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये 2 बार है, ठीक है, तो इसको कंबाइन कर लेंगे और ई रेस्ट माइनस जो तुमने कॉमन लिया था लास्ट में उसको फिर से राइट साइड में भेज देंगे, मतलब ई रेस्ट माइनस एक्स को वहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे, तो विच इज 0 डिवाइड बाई ई रेस्ट माइनस एक्स, तो इवेंचुअली इट बिकम 0 ओनली। तो फाइनली यहाँ पे एलएचएस में आंसर क्या मिलेगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों टर्म कंबाइन हो जाएंगे, माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स विच इज माइनस ऑफ 2 डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई एंड दैट्स आवर आंसर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला स्टेप करूँ डिवाइडिंग बाई ई रेस टू 2x टू मेक इट c2 अ सेपरेट कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ डिवाइड करेंगे y c1 एंड यहाँ पे c2, ये तो कैंसिल हो गया, इसको तो डिवाइड करें, ये बन जाएगा y e रेस टू माइनस 2x एंड दिस इज c1, डिवाइड में पावर लेस हो जाएगा 3x माइनस 2x विच इज x, ठीक है। नाउ विल टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव, अभी तक मैंने सम्स में डेरिवेटिव लिया ही नहीं एंड स्टिल बोथ द कांस्टेंट आर प्रेजेंट, बट द गुड थिंग इज व्हाट कि c2 इज माय कांस्टेंट टर्म हो गया। If I'll take the first derivative, that is differentiate with respect to x, LHS I will apply u into v rule, u derivative of v which is e raised to minus 2x, again derivative of minus 2x is minus 2 plus e raised to minus 2x and again derivative v, that is dy by dx. Now RHS में क्या दिया है, c1 e raised to x, c1 वैसे जगह e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x and c2 is 0, तो इसका मतलब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और मेरा एक कांस्टेंट रिमूव हो गया, तो फाइनल आंसर इज माइनस 2y e raised to minus 2x plus e raised to minus 2x dy by dx is equal to c1 e raised to x। जैसे यहाँ पे c2 के साथ e raised to 2x था तो मैंने इसको डिवाइड किया सो दैट c2 becomes a separate term constant। सिमिलरली अब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेने से पहले जो c1 के साथ e raised to x इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो सबसे पहले e raised to x से डिवाइड करेंगे सबके साथ, that is divide by e raised to x, तो minus 2y e raised to minus 2x divided by e raised to x plus e raised to minus 2x divided by e raised to x dy by dx is equal to c1। तो फाइनल आंसर इज माइनस 2y, डिवाइड में पावर लेस होगा, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x माइनस 2x माइनस x माइनस 3x इज इक्वल टू c1। नाउ अब इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट यहाँ पे भी u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, माइनस बाहर ले रहा हूँ मैं, इवन 2 भी बाहर ले रहा हूँ, u इंटू वी, y मेरा u है और e रेज टू माइनस 3x मेरा v है, तो u डेरिवेटिव ऑफ v e रेज टू माइनस 3x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x इज माइनस 3 प्लस e रेज टू माइनस 3x, y का डेरिवेटिव इज dy बाय
dx प्लस यहाँ पे भी u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, e रेज टू माइनस 3x dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx e रेज टू माइनस 3x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 3x अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x इज माइनस, और RHS में जो C1 है उसका डेरिवेटिव विल बी 0. नाउ एज यू कैन सी मेरा all that is two constant C1 and C2 both are removed. Now bracket open कर देंगे बस अभी, minus 2 3 सा plus 6y e raised to minus 3x minus 2 e raised to minus 3x dy by dx plus e raised to minus 3x d2y upon dx square minus 3 e raised to minus 3x dy by dx equal to 0. सब में e raised to minus 6 कॉमन है, it will be 6y minus 2 dy by dx plus d2y upon dx square minus 3 e raised to minus 6 को वहाँ डिवाइड में भेज देंगे, लास्ट में जो भी e raised to है उसको भेज देंगे आप, and 0 upon something is again 0 only, so we are left only with d2y by dx square minus 2 dy by dx minus 3 dy which is minus 5 dy by dx plus 6y equal to 0, and that's our final answer. ठीक है, we have only one constant here in this question, we have only one constant y square equal to x plus c the whole cube, and we want to remove that constant. ठीक है, so let's start. फिर से वही चीज, c को कांस्टेंट बनाएंगे, मतलब सबसे पहले तो यही करना है. सो 3 को वहां भेज देंगे तो इट विल बिकम y raised to 2 by 3, मतलब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, it will be x plus c only. Y raised to 2 by 3 is equal to x plus c. Now differentiate with respect to x. Y raised to 2 by 3 का डेरिवेटिव will be 2 by 3 y raised to 2 by 3 minus 1 into dy by dx. जब भी y का लेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इंटू dy by dx लिखना है, x का डेरिवेटिव 1 और c का डेरिवेटिव विल बी 0. इट इज 2 by 3 y raised to 2 by 3 minus 1 to 2 minus 3 minus 1 by 3 dy by dx is equal to 1. अब सिंप्लीफाई करना, dy by dx 2 by 3 यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे उस साइड तो इट बिकम 2 by 3 और रेसिप्रोकल 3 by 2, तो 2 by 3 वहाँ जाएगा तो विल बी 3 by 2, और y रेस टू माइनस 1 by 3 जो ऊपर मल्टीप्लायर है वहाँ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, मतलब नीचे आएगा y रेस टू माइनस 1 by 3. तो dy by dx equal to 3 by 2, we'll take it up y raised to 1 by 3, and that's my answer. Find the differential equation by eliminating the arbitrary constant from the relation x square plus y square equal to 2x. Find the differential equation or obtain the differential equation, मतलब एक ही है, यहाँ पे भी सेम सॉल्व करना है. It is x square plus y square equal to 2ax. X square plus y square equal to 2ax. We have only one constant, so we'll differentiate one times. We'll differentiate one times.
differentiate with respect to x. Will differentiate one times. x square का डेरिवेटिव is 2x, y square का डेरिवेटिव is 2y, dy by dx implicit फंक्शन है. 2a और x का डेरिवेटिव is 1, बट स्टिल अभी भी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ है. कांस्टेंट रिमूव नहीं. तो कांस्टेंट रिमूव करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. व्हाट आई एम गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. देखो स्टार्ट कैसे करेंगे. मुझे a रिमूव करना ना, तो क्वेश्चन में से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax. 2a की वैल्यू क्या मिलेगी क्वेश्चन में से. 2a इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय x. तो विल सब्स्टिट्यूट 2a एज माय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय x. फ्रॉम द क्वेश्चन से मैं यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करूँ. तो 2x plus 2y dy by dx is equal to x square plus y square divided by 2a divided by x. That x will multiply it on left hand side. 2x square plus 2xy dy by dx is equal to x square plus y square. ठीक है. So now there is no a term. बस सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो 2x स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड में भेज दे रहा हूँ. इट विल बी 2xy dy by dx. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर लेस कर सकते हैं. तो इट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट्स माय फाइनल आंसर. तो 2xy dy by dx is y square minus x square. This is my what? The differential equation. ठीक है. Third question. Form the differential equation by eliminating arbitrary constant. Same equation है, बस अब equation change हो गया है. bx plus ay is equal to ab. In this we have two constant a and b. Same way differentiate with respect to x. bx में b बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव is 1. a में ay में a बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव is dy by dx. और ab is my 0 क्योंकि कांस्टेंट, there is no x term. One more time differentiate करेंगे, that is दूसरी बार. Again differentiate with respect to x. तो b का डेरिवेटिव will be 0. a बाहर आ जाएगा, dy by dx का one more time will be d2y by dx square equal to 0. तो फाइनल आंसर मिला मुझे a 0 0 मतलब 0. बट आई डोंट वांट कांस्टेंट टर्म, देयर इज वन मोर a. तो a को RHS में भेज दूंगा. 0 upon a is again 0. So finally my differential equation is d2y by dx square equal to 0 and that's my answer. This is question number 3rd. So in 4th question again we have only one constant. So we'll differentiate only one times and we'll eliminate that a. So 3y square even dy by dx. 35ax में 35a बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1. But still 35a है, तो I will get the value of 35a from here. Question में से value replace करेंगे. It is my 35a.
and that value will replace in the question. 3x square plus 3y square dy by dx 35a. 35a की वैल्यू क्या, इट इज x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब 3xy, सिमिलर क्वेश्चन जैसा सेकंड मैंने किया था, dy by dx is x क्यूब प्लस y क्यूब, x को ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में बिकॉज वी हैव अ सिमिलर टर्म, तो 3xy square dy by dx it is x cube plus y cube minus 3x cube, 3xy square, x cube में से 3x cube लेस हो जाएगा तो it will be minus 2x cube. That's our answer. ठीक है, तुम लोग आंसर यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, अगर चाहो तो सबको एक साइड भेजना है और जीरो करना तो भी कर सकते हो तुम लोग, मतलब सबको अगर मैं LHS में ले लूँ तो इट विल बी 2x क्यूब प्लस y क्यूब, और ये तो LHS में है 3xy स्क्वायर dy by dx इक्वल टू 0 एंड दैट्स आवर आंसर. तुम यहाँ पे स्टॉप करो, यहाँ पे चलेगा. ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, it is x square plus 4y square equal to 4b square. We have only one constant, so we'll differentiate only one time. Differentiate with respect to x. X square का derivative is 2x, 4y square का derivative is 2y dy by dx, and 4b square is constant, the whole constant, there is no xy term, so it will be 0. The final answer is 2x plus 8y dy by dx. So this is my answer, but actually every term is divisible by 2, even number. Divide by 2 करेंगे तो you will get an equation x plus 4y dy by dx is equal to 0, and that's my answer. This is our exercise 8.2 complete. Next part is we have to solve the differential equation. Solve the differential equation. And differential equation solve करने के लिए तुम्हारे पास 3 मेथड है, and these 3 method consist 3 exercise. First one is variable separable method, जो कि सबसे easy है comparatively. दूसरा है homogeneous differential equation. एंड तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये 3 एक्सरसाइज सॉल्व करना है. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.3 वेरिएबल सेपरेबल मेथड. वेरिएबल सेपरेबल मेथड. ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे वेरिएबल सेपरेबल. नाउ सी, सबसे पहले मैं इसका मेथड समझा दे रहा हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज प्रॉब्लम. देखो मेथड तुम्हारे पास क्या है, वेरिएबल सेपरेबल. तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब समथिंग dy by dx इज इक्वल टू कोई एक x एंड y के टर्म्स में वेरिएबल दिया रहेगा. मेथड ये है dy के टर्म और dx के टर्म दोनों को सेपरेट करना सबसे पहला, मतलब dy के टर्म अलग और dx के टर्म अलग. नेक्स्ट स्टेप इज dy के साथ यू हैव टू राइट y टर्म एंड dx के साथ यू हैव टू राइट x टर्म. दिस इज माय सेकंड स्टेप, मतलब dy के साथ y टर्म एंड dx के साथ x टर्म. सो हियर वी कैन से दैट द वेरिएबल्स आर सेपरेटेड. dy वाले टर्म अलग हो गए, dx वाले टर्म अलग हो गए. इट इज नॉट नेसेसरी कि y लेफ्ट में होना चाहिए, वाइस वर्सा, x के टर्म लेफ्ट में और y के टर्म राइट में चलेगा, बट एवरी टाइम dy के साथ y टर्म होना चाहिए और dx के साथ x टर्म होना चाहिए.
and the last part is, once it is done, last part is integration. It is y term of dy and this is x term of dx. तो ये मेरा वेरिएबल सेपरेबल मेथड का वे है सॉल्विंग. dy टर्म अलग, dx टर्म अलग, dy के साथ y टर्म, dx के साथ x टर्म, and then we'll take integration at So this is our method. This is called as variable separable method. Now let's do exercise problem. एग्जाम में मेंशन नहीं करेंगे कि ये कौन से मेथड से करना. यू हैव टू आइडेंटिफाई. 8.3. Let's start. Eight point three, first question. dy by dx is equal to x square y plus y. वेरिएबल सेपरेबल कैसे ध्यान से देखो. dy by dx, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन ले लेंगे y को. इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो y and x are separate term. Then we'll cross multiply. dy is equal to y times of x square plus 1 and dx will multiply. The rule is dy and dx once separated, dy के साथ सिर्फ y के टर्म चाहिए और dx के साथ सिर्फ x का टर्म. तो dx के साथ मेरे पास x का तो टर्म है लेकिन y का है जो कि यहाँ पे नहीं. इसको ट्रांसफर कर दो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो वहां पे डिवाइड हो जाएगा 1/y dy and here it is x square plus 1 dx. नाउ dy के साथ y टर्म और dx के साथ x टर्म है. कोई भी मिसमैच नहीं है. वेरिएबल सेपरेबल हो गए. y के टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और x के टर्म ऑन द राइट हैंड साइड. द नेक्स्ट पार्ट इज टेकिंग इंटीग्रेशन. तो मैं यहाँ वर्किंग बता दे रहा हूँ. टेकिंग इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy, integration of x square plus 1 dx. Now we'll take integration. 1/y का integration is log of mod of y. 1/y का integration is log of y. And we have x square plus 1. X square का integration is x cube by 3 plus 1 का integration is x and last में plus c. हो गया. That's my answer. So in this way, we are going to solve the differential equation. ठीक है. वेरिएबल सेपरेट बहुत इजी. वेरिएबल सेपरेट होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन भी इजी रहेंगे, डिफिकल्ट नहीं रहेंगे. d theta by dt is minus k times of theta minus theta 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. d theta is minus k times of theta minus theta 0 into dt where k and theta 0 are constant. d theta के साथ theta के टर्म. इस बार x और y नहीं बल्कि theta और t है.
तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा माइनस थीटा जीरो डी थीटा, और यहाँ पे माइनस के डी टी, टेकिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है तो लॉग एक्स, तो इट विल बी लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा जीरो, 1 अपॉन एक्स का लॉग ऑफ एक्स, माइनस के बार आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1, और 1 का इंटीग्रेशन टी लिख देंगे। चाहो तो एक ही स्टेप में मैं लिख सकता था, बट मैंने यहाँ पे वर्किंग बताया। 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस सी, दैट्स माई आंसर, माइनस के टी प्लस सी, दैट्स इट। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। इस बार dy और dx अलग अलग टर्म करके दिए हुए हैं, बट प्रॉपरली सेपरेटेड नहीं है, तो इसको मतलब रीअरेंज करना पड़ेगा टर्म्स। सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 1 माइनस वाई डी वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन है 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म मैं लेफ्ट में ले रहा हूँ, तो ये जो पॉजिटिव दैट बिकम्स नेगेटिव, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, नो वाई के डी वाई के साथ पूरे वाई टर्म, तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, 1 माइनस वाई, ये वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ मेरे पास 1 प्लस एक्स है, और वो एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। टर्म सेपरेट हो गए, नाउ वी कैन टेक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे स्प्लिट कर देते, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो वाई अपॉन वाई स्क्वायर मतलब एक वाई कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली आई कैन राइट एज 1 अपॉन वाई ओनली। यहाँ पे माइनस अगर बाहर ले लूँ तो इट विल बी व्हाट, अगेन द सेम थिंग, स्प्लिट करेंगे हम लोग यहाँ पे भी, तो स्प्लिट करने पे क्या मिलेगा, इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स पर 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, बस स्टार्ट टेकिंग इंटीग्रेशन। 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई का लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, और लास्ट में प्लस सी। याद रखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, माइनस 1 अपॉन वाई माइनस लॉग ऑफ वाई, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स, नहीं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा अंदर, हो गया आंसर। तो एक काम करते, लॉग वाले टर्म एक साइड ले लेते हैं, तो ये माइनस लॉग को लेफ्ट में लूंगा तो प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन वाई को राइट में लूंगा तो प्लस 1 अपॉन वाई एंड प्लस सी, दैट्स माई आंसर। तो log x माइनस log y, सॉरी दिस इज y, log x माइनस log y is equal to 1 upon x plus 1 upon y plus c. This is my what, the general solution. ठीक है, this is third question.